Hello everyone. As you know that I am doing Indian polity previous year questions from state public service commissions. Okay, we are dealing the topic article of the constitution. Many lecture I've already done that. Also, if you have not watched, please watch those videos as well. Okay, we are dealing last 30-year questions from different PSCs exams like UP PCS, MP PCS, Rajasthan PCS, BR PCS, etc., including UPSC exams as well. Okay, this is about myself. So let's see today's questions. Okay, so this is, you can see here this list. Okay, union list, state list, concurrent list. You know that in all these three lists there is a subject. Okay, entries, like how many things are there. So you can see here 97 entries, 47 entries, 66 entries. Okay, so even though if you don't know how much is the in the entries, but by the guess you can do that. How? Because union list you will have lot of entries for sure. So one you can match with anyway. Okay, but still we'll see the others as well. So you can see the union list has 97 entries. State list has 66 entries. Okay, and concurrent list has 47 entries. So with this, if you match, you'll get B option. Okay, B is not C. So you can see here in the explanation part, union list has 97 entries, state list has 66 entries, and concurrent list has 47 entries. Okay, so you know that the entries which is in union list, union government can make the law. The state list, state government can make the law. On concurrent list, both union and state can make laws. But what happens, suppose on the same subject, if union is also making law and state is also making law, then union law will be supersede with the state law. So we have to accept the union law. Okay, next, under the Constitution of India, economic planning is a subject in the state list, union list, concurrent list, not specified in any list. You can see this question came in Uttarakhand PCS. So see, this economic planning, this comes into concurrent list. ओके, देखिए जो स्टेट होता है वो भी अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करने की कोशिश करता है, और जो यूनियन होती है वो भी यूनियन फॉर ऑल ओवर इंडिया। सपोज अगर मान लो बजट पेश हो रहा है तो उसमें कोई अगर पॉलिसी आ रही है तो वो स्टेट में भी एप्लीकेबल होता है, और सिमिलर काइंड ऑफ लॉ कैन मेक थोड़ा मॉडिफाइड करके जो स्टेट होता है वो भी लॉ बना सकता है. तो इस वजह से दिस कम्स इनटू कॉन्करेंट लिस्ट. ओके, आई विल नॉट से इस वजह से, बट एक्चुअली दिस इज क्योंकि स्टेट को भी अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो इफ़ इट इज़ इन यूनियन लिस्ट तो क्या होगा, वो यूनियन जैसा चाहेगा वैसा करेगा, और केवल स्टेट में होगा, यूनियन में नहीं होगा, तो भी फिर जैसे स्टेट चाहेगा वैसा होगा. इस वजह से इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है कि दोनों तरफ से इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो एंट्री 20 ऑफ, देखिए हमें एंट्री किस नंबर पे कौन सी एंट्री वो याद नहीं रखना है, बट हमें ये याद रखना है कि हाँ कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, यूनियन में कितना है, स्टेट में कितना है. ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा किस में होता है. अगर आप बजट देखोगे, स्पेशली यूनियन बजट, तो वो जब बजट पेश करते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. इवन इफ़ यू डोंट सी द लिस्ट, यू कैन ईजिली गेस द ओके ये जो सब्जेक्ट हैं. जैसे डिफेंस होता है वो यूनियन लिस्ट में होता है. ओके, सो कंकरेंट लिस्ट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग. इट इज़ टू बी नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस एंट्री. ओके, तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो इस एंट्री के तहत ही बनाया गया था. ये देखिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एक्सप्लेनेशन सर, इस वजह से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना ज़रूरी है. ओके,
नेक्स्ट अगेन फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दूसरे एग्जाम में. इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, special list. Okay, so we have seen earlier, so economic planning is included in the concurrent list. Okay, देखिए क्वेश्चन जितनी बार भी रिपीट हुआ होगा in different exams, I have considered those questions as well. Okay, वो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि क्वेश्चन क्यों बार बार करा रहा है, बट उससे हमें ये पता चलता है कि उस चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ना है जब भी हम बुक पढ़ते हैं या फिर लेक्चर्स देखते हैं. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग क्रूएलिटी टू एनिमल्स इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, अब प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स बोल रहा है. ओके, देखिए बिहार पीसेस में आया हुआ है और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का है. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, preamble, ओके, वन ऑफ द अबव और मोर वन ऑफ द अबव. preamble तो नहीं होगा. ओके, preamble आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. अगेन देखिए ये भी हमारा कंकरेंट लिस्ट में ही आएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टेट में भी एनिमल्स रहते हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी रहते हैं, तो दोनों के पास वो पावर होनी चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको मतलब जो क्रूएल्टी होती है उससे बचाने के लिए. ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एंड इंट्री 17 है इज लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट. देखिए इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है उसकी लेक्चर सीरीज भी मैं करा रहा हूँ, तो जब वो लास्ट में दिया हुआ है तो मैं एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें यूनियन में कितनी लिस्ट है और कितनी एंट्रीज हैं, स्टेट में कितने, कंकरेंट में कितनी है. बट इवन वो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे करने में, बट अगर आप जानना चाहते हो just go through the book. Okay, this list is given, you can just see, just get a brief idea of what is given in the entries. Okay, I'm also dealing the lecture series of M. Lakshmikant, so it will take some time. Okay, so because lot of chapters are given, I'm dealing now chapter number 3, so it takes time. Okay, इट विल टेक टाइम बिकॉज आई एम डूइंग अदर थिंग्स एज वेल. ओके, केवल मैं वही नहीं बना रहा हूँ. यू कैन सी द अगर आप पूरी मेरी प्ले लिस्ट देखोगे तो मैं काफ़ी चीज़ें एक साथ पैरेलली कर रहा हूँ. सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम. ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, बट मेरा टारगेट ये है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा दूँ, ठीक है, और सारे यूपीएससी वाले और स्टेट पीएससी वाले, उसके बाद फिर कंप्लीट लेक्चर सीरीज किया जाएगा. ओके, ऐसा मेरा प्लान है. बीच में कुछ चेंज होता है तो आई कांट से एनीथिंग नाउ. ओके, फाइन. सो दिस विल बी इन कंकरेंट लिस्ट. या नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? देखिए अब इसमें उल्टा पूछ लिया. अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, बोल दिया कौन सा कंकरेंट लिस्ट में है. पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न, फॉरेन अफेयर. देखिए फॉरेन अफेयर और पुलिस तो नहीं होगा, पुलिस स्टेट लिस्ट होती है, फॉरेन अफेयर यूनियन लिस्ट में आती है. ठीक है, देखिए यूपी पीसेस में आया हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसेस में आया हुआ है क्वेश्चन. तो ये क्रिमिनल, देखिए अब ये बी और सी में से होगा. ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, देखिए रेडियो एंड टेलीविज़न ये भी यूनियन लिस्ट में आता है. ओके, सो आंसर विल बी सी, क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है, अब आपको पता है ना हाई कोर्ट होता है और स्टेट लेवल पे फिर या और हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है सेंट्रल लेवल पे. आई विल नॉट से सेंटर लेवल, बट या ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है. ठीक है, तो दोनों जगह पे हो सकता है. ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लेना थोड़ा सा गलत होगा, जैसे कि लोकसभा में जैसे क्रिमिनल से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड लॉ बनाया जा सकता है, स्टेट में भी बनाया जा सकता है. ठीक है, तो इस वजह से वो चीज़ जो है दोनों जगहों पे हो सकती है. इस वजह से इट्स अ मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट. ओके, सो द आंसर इज सी, सॉरी बी. बाकी पुलिस स्टेट लिस्ट, रेडियो एंड टेलीविज़न यूनियन लिस्ट, फॉरेन अफेयर यूनियन लिस्ट. ठीक है, और देखिए ऐसे क्वेश्चन से भी हमें मतलब काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं
कि हाँ कौन सा किस लिस्ट में है, ठीक है। सो criminal laws including all matters included in the Indian Penal Code are subject of the concurrent list, while police is the list of is subject of the state list. Foreign affair and radio communication, radio television are subject of union list, ठीक है। नेक्स्ट फिर से द फॉलोइंग एंट्री सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, फिर से कंकरेंट लिस्ट पूछ रहे हैं हमसे। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पर पर्सन टैक्स, ट्रेजर ट्रैवल। आई थिंक देखिए अगर ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इवन अगर आपको नहीं पता है पूरा लिस्ट तो आप आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ गया, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आपको डायरेक्ट पता है तो यू कैन डू दैट, ओके। देखिए इसमें जो पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग है, अब देखिए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये देखिए ये स्टेट लिस्ट में आता है। जो हेल्थ होता है, पुलिस होता है, ये स्टेट लिस्ट का पर्सन है, आई मीन चीज़ है। पर पर्सन टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स किस में होता है, यूनियन लिस्ट में होता है, ठीक है। सो और देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, अगर आप जैसे यूपी के हो तो आपको थोड़ा सा याद होगा, अभी बीच में यूपी गवर्नमेंट ने बोला था कि पता नहीं, आई थिंक इज ऑलरेडी लॉ, अगर किसी के दो से ज़्यादा बच्चे हैं सो दे विल नॉट बी अवेल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। उनको गवर्नमेंट बेनिफिट जो भी मिलती है वो नहीं दी जाएगी, या उनको गवर्नमेंट जॉब, उनकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। तो ये तो देखिए ये तो स्टेट में ये बात आई, सेंटर में भी आप देखते हो कि यूनियन लेवल पे भी ऐसी बात उठती रहती है कि दे विल कम अप विद द लॉ फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। सो इसका मतलब है कि दोनों जगह पे हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है। इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ओके। सो द आंसर इज ए, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो भी एग्जाम्पल्स आप जानते हो उस तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो दिया हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, एंट्री 20। अब देखिए ये शुरू में नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट ये बाद में ऐड हुआ बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एंट्री 6, सब इसके बाद ये सारे जो स्टेट लिस्ट में आते हैं। ट्रेजर ट्रोव, एंट्री 44, पर पर्सन टैक्स, स्टेट लिस्ट। ये मैंने यूनियन लिस्ट बोल दिया था आई थिंक शुरू में, बट ऐसा नहीं है, सॉरी फॉर दैट। दिस इज एक्चुअली स्टेट लिस्ट, ओके। सो द आंसर इज ए। देखिए अब यहाँ पे एंट्री ही पूछ लिया। अब ये देखिए यूपीएससी में तो ऐसा नहीं पूछेगा, बट अब इसी वजह से हमें थोड़ा सा वो भी पता होना चाहिए ना कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में है। एंट्री भी हमें पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी, पूरा नहीं याद रखना, बट थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए। विच लिस्ट एंड एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। लिस्ट 1 एंट्री 72, लिस्ट 2 एंट्री 27, लिस्ट 2 एंट्री 37, लिस्ट 3 एंट्री 32, ओके। तो इसका देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, जो ए और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट होगा। लिस्ट 1 एंट्री 72 एंड लिस्ट 2 एंट्री 37, ओके। दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। We'll read here to understand why 2 option is correct. The 7th schedule of Indian Constitution deals with the division of power between union government and state government. List 1 entry 72 deals with the election to the parliament, to legislature and the office of president and vice president, ठीक है। पहला समझ में आ गया। इलेक्शन कमीशन
List 2 entry 37 deals with the election of legislature of the state subject to the provision of any law made by parliament. ठीक है, सही है. सो ओके, सो दिस इज द रीज़न. ओके, ठीक है. एक तो ये जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है, जो स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराता है. और ये वाला जो है लिस्ट 1 इंटी 72 यूनियन लिस्ट की बात हो रही है, जिसमें जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट में ऑब्वियसली जो लेजिस्लेचर होते हैं पार्लियामेंट के उनके, एंड स्टेट के भी, प्लस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके लिए. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी. नेक्स्ट, देखिए कई चीज़ें होती है ना कि हम लोग अगर डायरेक्ट बुक से पढ़ लेते हैं, बट उसको उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करते हैं. बट जब क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो जो चीज़ें दी हुई हैं बुक में उसको हम लोग अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं. ओके, ऐसा लिखा था, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन बना है, इसका आंसर ये होगा. तो क्या होता है ना कि फिर हम उसको ज़्यादा समय तक याद रखते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाई इन द कंकरेंट लिस्ट. फिर से कंकरेंट लिस्ट पूछ रहा है. एग्रीकल्चर, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस. पुलिस और डिफेंस तो नहीं होगा. ओके, इट इज़ बी. एजुकेशन जो होता है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, पुलिस स्टेट लिस्ट, डी डिफेंस यूनियन लिस्ट. Currently there is 52 subject defined and enlisted under list 3 of the 7th schedule of Constitution of India, which form the joint domain of both state government and the union territories of India as well as the central government of India. Initially education was subject of state list entry 11. ठीक है, शुरू में ये यूनियन स्टेट लिस्ट में था, but under 47 Amendment Act of Constitution 1976 education become a concurrent list subject which enable both center and state government to legislate the subject under subject matter of education. ठीक है, तो शुरू में ये स्टेट लिस्ट में था, बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट उसको कंकरेंट लिस्ट में बना दिया गया. बाकी एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, पुलिस स्टेट लिस्ट, डिफेंस यूनियन लिस्ट. नेक्स्ट देखिए, अब जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी के बेस्ड पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से आप आंसर कर सकते हो. एजुकेशन विच वाज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट was transferred to concurrent list by 24th Amendment Act, 25th Amendment Act, 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act. Okay, so it's a 42nd Amendment Act. ठीक है, so it is done by 42nd Amendment Act. Answer is C. फिर से वही क्वेश्चन देखिए, अब यूपी पीसीएस में ये रिपीट हुआ है. द एजुकेशन, वो भी यूपी में ही हुआ था, बट किसी दूसरे एग्जाम में हुआ था, बट ये यूपी पीसीएस में ही हुआ था. ओके, द एजुकेशन विच वाज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट विच वाज ट्रांसफर्ड टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 24th Amendment Act, 25th Amendment Act, 42nd Amendment Act, 44th Amendment Act. So obviously बात है, we have seen that 42nd Amendment Act.